A very good morning to you all, children. Today we'll read a new chapter, chapter number 8 in your grammar book. We'll start it, and this is the name of the chapter is Parts of Speech. So basically, we'll learn about parts of speech. I think you have already learned them. You know them. What are the parts of speech? But today we'll be discussing it. There are 8 parts of speech, and in this unit, you will be introduced to these 8 parts of speech in formal manner, as you have already been using them in sentences. We use them, but formally we know, we'll come to know that how many parts of speech and what are the indications, how we learn about them, how do we find them in a sentence. हम एक सेंटेंस में उनको कैसे ढूंढते हैं और हमें कैसे पता चलता है what are they. ठीक है, बेसिकली द 8 parts of speech are noun, pronoun, adjectives. So you already know because in separate topics आपको पहले से हमने जब क्लासेस में कराया तो हमने separate टॉपिक कराया कि नाउन क्या होता है, वर्ब इज़ लाइक डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं. सो टुडे वी learn more about them: pronoun, noun, adjective, verb, then adverb, preposition, conjunction, and interjection. So now in this chapter I'll just define everything, and उनके बारे में हम definition भी पढ़ेंगे और उसके हम examples भी देखेंगे. And after learning all of them, we'll just do a few exercises. ठीक है. So just take out your grammar books, and those who don't have grammar books, for them I am presenting the screen. So we'll just start with this. Parts of speech. So here it is written, every name is called a noun. So first we are going to noun. So they are saying every name is called noun. हर एक नाम जिसको नाम दिया जाता है उसे noun कहते हैं. As tree and mountain, girl and town. So this is, I think, basically what it is. It is a short and sweet poem in which rhythm के साथ आपको rhyme के साथ ये समझाया गया है in this poem that what are the parts of speech. So this is a poem on parts of speech. It has a rhythm, और इस rhyming scheme के साथ आपको समझाया गया है कि हर एक नाम का एक जो नाम होता है उसको noun कहते हैं. As tree and mountain, girl and town. जैसे tree, mountain, girl और town ये सब क्या है? Noun. So noun is rhyming with town. So I told you when we were reading poem, so it is called a rhyme scheme. इसे rhyme scheme कहते हैं. Poets often use it to rhyme the words. ठीक है. Now next is, in place of noun the pronoun stands as he and she can join their hands. So दिस इज़ अ वेरी नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग. ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया ताकि एक पोएम के थ्रू आपको ये याद होए. इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह जो यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन होता है. एज ही एंड शी कैन जॉइन देयर हैंड्स. उसके एग्जाम्पल क्या है? ही और शी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नीता और सीता और राकेश, सो इंस्टेड ऑफ रीता, सीता और राकेश वी कैन यूज़ ही और शी. सो जो चीज़ें, जो भी वर्ड नाउन की बदले लगाया जाता है उसको कहते हैं pronoun. So basically in these lines we understand that what pronouns are. Then the next is, the adjective describes a person, place or things as golden hair or mighty king. So in this beautiful rhyming scheme they have told us, हमें एक अच्छे से गाने के थ्रू, पोएम के थ्रू, ये कविता के थ्रू उन्होंने बताया है कि जो एडजेक्टिव है वो क्या होता है. हिंदी में वी कॉल इट विशेषण. वो किसी चीज़ की विशेषता बताता है. इफ़ आई से देर इज़ अ टॉल गर्ल, या दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, अगर हम बता रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल है, टॉल है, कि उसकी खासियत बता रहे हैं, सो दैट विल बी एडजेक्टिव. सो ये बोल रहे हैं गोल्डन हेयर और माइटी किंग. अगर वो ताकतवर राजा है, या गोल्डन हेयर है, या किसी के गोल्डन बाल हैं, तो बाल हैं बट बाल कैसे हैं? गोल्डन है. सो दीज आर एडजेक्टिव्स. सो इन दीज लाइन्स वी नो अबाउट एडजेक्टिव्स. सो पिक्चर्स आर ऑल्सो ड्रॉन, यहाँ पर दिख रहा है आपको, एंड दे आर टेलिंग अस. नाउ नेक्स्ट इज वर्ब. द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग done, to eat and drink, to laugh and run. So verb again it is a doing word जिसमें action होता है, and वो बता रहे हैं जैसे कि खाना, पीना, laugh मतलब हंसना और भागना, दौड़ना. सो नाउ व्हाट दे हैव डन के साथ रन को राइम किया है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन वी रीड द पोएम, हमने ये ध्यान दिया है कि देर इज़ अ राइमिंग स्कीम. नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ थिंग्स आर डन. द एडवर्ब्स टेल as nicely, slowly, badly and well.
किस तरीके से चीज़ की जाती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ से ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट. नाउ रनिंग तो था वर्ब, वो दौड़ रहा था, बट कैसे? फास्ट. सो बैडली, स्लोली, शी इज़ राइटिंग स्लोली. राइटिंग हो गया, वो लिख रही है. सो राइटिंग इज़ अ वर्ब, बट स्लोली वो धीरे लिख रही है. देन इट स्लोली विल बी द वॉट इट विल बी एडवर्ब्स. जो भी काम किया जा रहा है, एक्शन किया जा रहा है, वो किस तरीके से किया जा रहा है, दैट इज़ नोन बाय एडवर्ब्स. सो एडवर्ब्स इस लाइन में हमें ये समझाते हैं कि एडवर्ब्स वो वर्ड हैं जो हमें बताते हैं कि हाउ द वर्ब्स आर डूइंग देयर वर्क. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया नाइसली, अच्छी तरीके से, स्लोली, धीरे से, बैडली, बुरी तरीके से, एंड वेल मतलब अच्छे से. सो दीज आर लाइक एडवर्ब्स. Now the preposition shows relation as in the river or at the station. Preposition जो होते हैं what are they? They show, they are used for show relation दिखाने. किसी का किसी के साथ कोई संबंध होता है, किसी को किसी के साथ जोड़ने के लिए, रिलेशन बताने के लिए. जैसे in the river, अगर रिवर के साथ इन लगाएंगे, या at the station, in, at, behind, बैक, ये सारे क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं प्रपोजिशन. फर्दर इन द चैप्टर वील लर्न मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट. ठीक है, हम आगे भी बताएंगे. सो दिस इज़ अ पोएम बेसिकली. तो इसमें छोटा छोटा आपको शॉर्ट वे में बता रहे हैं. कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन जॉइन इन मैनी वेज. ये सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ते हैं आपस में. अगर दो तरीके के सेंटेंस में दो हिस्से हैं और उन दोनों को जोड़ दिया जाए, ही वॉज राइटिंग वेरी फास्ट बट ही वॉज वेरी शार्प, या कोई भी दो वर्ड को बट या इफ़ या किसी चीज़ से जोड़ा जाता है और एक फुल सेंटेंस बनाया जाता है, तो वो जो बीच का वर्ड होता है उसे बोलते हैं कंजंक्शन. सो यहाँ पर और, एंड, इन चीज़ों को जब हम एंड लगा देते हैं बीच में, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग. सो वो ब्यूटीफुल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो हमने दो वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करके सेंटेंस को वो किया. सो दैट इज़ अगेन नोन एज कंजंक्शन. नेक्स्ट इज़ द इंटरजेक्शन. क्राइज आउट, वाव और हाक. इट नीड्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क. सो इंटरजेक्शन जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देर इज़ अ लाइक मोमेंट ऑफ जॉय और सरप्राइज. सो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है इन बिटवीन. सो इंटरजेक्शन भी यही है कि समथिंग विच इज़ क्राइड आउट, जिसमें एक जॉय या हैप्पीनेस होती है और जनरली उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन. So there are 8 parts of speech and your teacher is going to teach in English language of the words are divided into 8 parts of speech. They have different roles in a sentence. Some words can be placed into 2 or more groups. So in this page इन्होंने यही बताया है कि 8 parts of speech होते हैं and your teacher will be guiding you and telling you more about it. किस तरीके से हमारा sentence में form में use होता है. So नाउ इन द नेक्स्ट पेज व्हेन वील मूव फॉरवर्ड, तो आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल दिए हैं. अब जैसे जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वील नो मोर अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग वाटर. मैं पानी पीता हूँ या पीती हूँ. है वाटर इज़ यूज्ड एज अ नाउन. पानी है, एक सब्जेक्ट है, वो क्या चीज़ है ना, वो हो गया नाउन. हेयर वाटर इज़ यूज एज नाउन. आई वाटर माई प्लांट्स डेली. मैं अपने पौधों को पानी डेली देता हूँ. मतलब अभी उन्होंने उससे यही बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, उससे उसका मतलब बदल जाता है. वाटर एक वर्ड है, बट अगर वाटर को पानी के जैसे यूज़ किया जा रहा है कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर, वो हो गया नाउन. बट हेयर वाटर जब हमने यहाँ यूज़ किया कि आई वाटर माई प्लांट्स डेली, तो इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया है कि मैं अपने पौधों को डेली पानी देता हूँ, एंड देता हूँ इज़ अ वर्ब. सो नाउ इट इज़ वाटर हेयर विल बी वर्ब, पानी देना. ठीक है. सो यही बात आगे बताई गई थी कि एक वर्ड जो है कई कॉन्टेक्स्ट में, कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ हो सकता है, मोर देन 1, 2 और 3. सो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इन दिस फोटोग्राफ. यू कैन जस्ट सी दैट दे हैव ड्रॉन एन ऑक्टोपस. एक ऑक्टोपस बनाया हुआ है. एंड एज यू नो द ऑक्टोपस क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि उसके 8 हैंड्स होते हैं. सो उसके 8 लिम्स की वजह से ऑक्टोपस नाम. और इसी तरीके से हम याद रखेंगे कि ऑक्टोपस का जो मेमोराइज करने का एक तरीका है कि ऑक्टोपस हैज़ 8 लिम्स, 8 उसके लिम्स, और इसी तरीके से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. एंड
वील बी हैविंग अपने टिप्स में याद रखना, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ग्रामर हैज़ सर्टन रूल्स इन इंग्लिश के कोई रूल्स होते हैं, ये जैसा बताया जाता है वैसे ही करना होता है. लाइक इन मैथमेटिक्स इफ़ देयर इज़ अ रूल, तो उसमें हमारा लॉजिक ये होता है कि ये रूल बनाया गया है और हमें इसको इसी तरीके से लिखना है, उसी के बेसिस पे सम सॉल्व करते हैं. ऐसे ही इन्हें याद रखना है ऑन योर टिप्स. नाउन्स, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ठीक है. नाउ I'll just explain you quickly the definitions. फिर हम एक बार रिवाइज करेंगे. A noun is a name of a person, place, an animal or a thing. Examples are boy, Ram, Bengaluru, rhinoceros, laptop, etc. So noun क्या है? Name of a person, place, animal or thing. इन सब के जो नाम होते हैं उन्हें noun कहते हैं. Next, a pronoun is a word used in place of a noun. Example he, she, it, him, her, they, them, we, us. सो नाउन की जगह जब हम नाउन हमेशा नाम नहीं यूज़ करते हैं और उसके बदले जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज प्रोनाउन. सो प्रोनाउन होता है ही, शी, इट, देम, दे. अगर ही लड़के का नाम लिखना है और उस लड़के का नाम फर्स्ट सेंटेंस में, इफ़ यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, स्पेशली इट इज़ यूज्ड इन दिस, जब हम एक बड़ा पैसेज लिखते हैं तो एवरी टाइम वी कांट राइट कि रवि इज़ अ गुड बॉय, रवि वॉज गोइंग देयर, देन रवि वॉज डूइंग दिस. एवरी टाइम वी शुड नॉट राइट, वी विल स्टार्ट द पैसेज विथ रवि एंड नेक्स्ट आगे जाके वो हम उसके जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे. ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, देन ही बिल्ड अप अ हाउस. ऐसे कुछ भी उसके बारे में लिखना है. देन अगेन एंड अगेन वी कांट यूज़ रवि हेयर एंड देयर. सो इसी तरीके से एक बार जब नाउन फर्स्ट टाइम उसका नाम यूज़ किया जाता है उसके बाद प्रोनाउन ही यूज़ किए जाते हैं. एंड एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जिससे किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन पता चलता है. इट टेल्स समथिंग मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में उससे ज़्यादा कुछ बताते हैं, जो विशेषता उसकी बताते हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल हैप्पी, सैड, कॉन्फिडेंट, जो क्वालिटी है या उसके बारे में कुछ भी जो स्पेशल चीज़ बताई जाती है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव. लाइक पर्पल फ्लावर. सो फ्लावर कैसा था? पर्पल था. सो ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबें. सो किताबें कैसी थी? पुरानी. सो दीज विल बी नोन एज एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट इज वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. इट टेल्स what a person is doing or a thing is doing and what is or person or thing is or what a person or thing has. उसका पोजेशन वो क्या है और वो क्या कर रहा है, ये सारा कुछ क्या वर्ब से पता चलता है. जैसे डू, ईट, स्लीप, रन, एडवाइस, ये सारे जो हैं, आस्क, प्रोड्यूस, जो भी ये कर रहा है, जो भी वो होता है और जो भी उसका एक्शन है, उस सब किससे पता चलता है? वर्ब से. और वो वर्ब इसी तरीके के एग्जांपल्स है कि ईट मतलब वो खा रहा है. सो देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, सो दैट इज़ नोन एज वर्ब. नेक्स्ट मैंने आपको जैसे पहले बताया था एडवर्ब क्या होता है. एडवर्ब क्या है? इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब. वर्ब के मीनिंग में ही एडिशन है, क्योंकि वो वर्ब कैसे वो एक्शन किस तरीके से किया जा रहा है उसे बताने के लिए एडवर्ब. सो देर इज़ अ लिंक. वर्ब डूइंग थिंग्स एंड एडवर्ब इज़ हेल्पिंग देम आउट, किस तरीके से वो हो रहा है. सो जैसे हम अपने ध्यान में रखेंगे, जैसे हैप्पीली, ही वॉज दे वर सिंगिंग हैप्पीली, वो खुशी से गाना गा रहे थे. किस तरह गाना गा रहे थे? गाना तो गा रहे थे, दैट इज़ अ वर्ब. बट सिंगिंग हैप्पीली, तो हैप्पीली जो वो क्या है वो एडवर्ब है. सो हैप्पीली, टुमारो, फास्ट, नाउ, देन, ये सारी जो चीज़ें हैं दीज आर एडवर्ब्स. A preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. Example in, on, under, above. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब noun और pronoun के बीच में जो relation बताते हैं, उनका संबंध बताते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, in, on, दाएं बाएं, behind, पीछे, above, ऐसा ये जो सारे words हैं ये these are known as preposition. In the next page we'll see that two more parts of speech are there. For seventh number is conjunction is a joining word. वो दो words या phrases या फिर sentences को जोड़ के एक singular sentence जिसका self meaning एक fully explanatory sentence होता है. जैसे for example and, or, but, because,
दो, ऐसे जो चीज़ें हम जोड़ देते हैं और दो सेंटेंसेस के बीच में, तो दो शॉर्ट सेंटेंसेस को जोड़ के जो एक सेंटेंस फुल बन जाता है जिसका फुली मीनिंग इज़ नोन टू अस इज़ नोन एज कंजंक्शन. देन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्पीच विच वी आर लर्निंग अबाउट इज़ एन इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, फियर, एंगर, सरप्राइज. मैंने आपको पहले भी बताया इंटरजेक्शन को आपको एक्सक्लेमेटरी के साथ या लर्न करना है. लाइक इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हेन देयर इज मोमेंट ऑफ सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस और जॉय, सडन सरप्राइज और हैप्पीनेस से वाओ, हुर्रे, या we say all these alas, we say all these things, and there is definitely an exclamatory mark. So इस तरीके जो exclamation के साथ जो आते हैं words, they are known as interjection. जैसे कि they have given us example, bravo, oh, wow. So these are all interjection. So I hope you understood all this. There is a table given here, and I want you to understand in this table very various kinds of verbs are words are given. They include nouns, pronouns, adverbs, conjunctions. So 8 parts of speech. So various kinds of words are given. We have to segregate them and shortlist them and put under the right sequence. So basically we have to segregate them. So I think you all should give it a try yourself also, and in the next video I'll explain how they'll be segregated and how they'll be done. Okay, I hope you understood. Till that time you have to just revise this chapter, and in tomorrow's class I'll explain you how it will come under various headings. Okay. So that the video should not be too long, and it will be difficult to get it downloaded if I'll explain that much thing in one video. So tomorrow we'll do this portion of this chapter. Okay, thank you. I hope you understood. Thank you and have a nice day.